Good morning, everyone. Today we'll be learning about market targeting. This is the last topic of first module. Before this, we have learned about market segmentation. Market targeting is little bit similar to market segmentation. First, we'll be understanding the meaning of market targeting. Market targeting is simply an act or process of selecting target market from the entire market. What is that market targeting? Is simply an act or process of selecting the target market from the entire market. जो हमारा पूरा मार्केट है, जो फुल मार्केट रहेगा, उसमें से वी आर सेलेक्टिंग ए सर्टेन पार्ट, एक अलग सा एक टारगेट करते हैं हम लोग मार्केट को, एक स्मॉलर पार्ट को, उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट टारगेटिंग. जो पूरा मार्केट रहेगा हम लोग उसमें से एक स्मॉल पार्ट को टारगेट कर रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा टारगेट मार्केटिंग. हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमको कौन सा मार्केट सेलेक्ट करना है. It can be defined as an act of evaluating and selecting market segment. हमको evaluate करना है, that is before selecting and market segment हमको evaluate करना है कि इसमें हमको कितना profit हो सकता है. It is an act of evaluating and selecting the market segment. तो फिर market targeting क्या रहेगा? A company cannot concentrate on all the segments of the market. A company cannot concentrate on all the segments of the market. वो हर एक सेगमेंट को, हर एक कंज्यूमर को कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाएगा, हर एक कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. So what this market targeting is doing, it is just selecting a certain segment so that only that segment of consumers can be satisfied, and this segment of consumers will be having same preferences, same likes, dislikes, their purchasing power will be same. So the company can satisfy the market target. जो target उन्होंने select किया रहेगा, they can easily satisfy those people. अभी ये क्या रहेगा? Target market consists of groups of buyers to whom the company wants to satisfy. Target market में कौन रहेगा? Groups of buyers रहेगा to whom the company wants to satisfy or for whom the product is manufactured. That is, the company will be trying to satisfy a group of consumers for whom the goods are manufactured, prices are set, promotion efforts are made, distribution network is prepared to satisfy those groups of target market. जो भी कंपनी अभी करेगा वो सब किसके लिए रहेगा? जो उनका टारगेट मार्केट रहेगा उनके कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी जो भी करेगा, दे आर गोइंग टू ट्राई टू सेटिस्फाई द मार्केट टारगेट. अभी समझ में आ रहा मार्केट टारगेट? सिमिलर लाइक मार्केट सेगमेंटेशन, बट मार्केट सेगमेंटेशन इज डिफरेंट. मार्केट टारगेट में वी आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई द होल कंज्यूमर्स, सो वी आर टारगेटिंग ए पर्टिकुलर सेगमेंट. उस टारगेट में उसमें हम लोग टारगेट करेंगे कि ये जो है रहेगा, ये कंज्यूमर्स को हमको सेटिस्फाई करना है. For selecting the market target, first will be evaluate the market segment कि हमको यहाँ पे कितना revenues कितना आएगा, हमारा cost कितना होगा. First we will be evaluating. हम लोग एक अंदाजा लगा लेंगे कि हमको ये beneficial होगा, हम लोग ये काम कर सकते हैं, can we earn more profit. वो देखने के बाद only we can select the market. Before selecting the market target, market it is essential. क्या essential रहेगा? To ensure that the market is measurable. Measurable. What do you mean measurable? The marketer should be able to measure the target market in terms of income, potential demand. Measurable होना चाहिए. अभी यहाँ पे before selecting market target, मैंने उधर market 2 बार लिखा है, तो यहाँ पे आएगा before selecting a target market, it is essential to ensure that market is measurable. सेलेक्ट करने के पहले द मार्केटर शुड ट्राई टू फाइंड आउट वेदर द मार्केट विच ही इज सेलेक्टिंग इज मेजरेबल. मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ इनकम. उस ग्रुप, वो जो टारगेट मार्केट रहेंगे वहाँ पे लोगों का इनकम कितना रहेगा, उनका प्रेफरेंसेस कितना रहेगा, कितने बार वो लोग प्रोडक्ट परचेज करेंगे. दैट इज अबाउट मेजरेबल. एक अंदाजा होना चाहिए इनका पोटेंशियल इनकम कितना होगा, इनका इनकम कितना होगा, इनका पोटेंशियल, इस प्रोडक्ट का पोटेंशियल डिमांड कितना होगा, हाउ मेनी टाइम्स दिस people will be purchasing the same product. Measurable हो गया. उसके बाद sustainable. Sustainable means to develop any market, certain cost is involved.
कुछ भी मार्केट बनाना है तो देयर विल बी ऑलवेज सर्टेन कॉस्ट विल बी ऑलवेज इन्वॉल्व. द मार्केट targeted should be large enough to generate necessary revenue and sufficient profit. सस्टेनेबल मीन्स हमको अगर सस्टेन करना है बिजनेस में तो हमको ये ध्यान देना है कि विच एवर मार्केट वी आर सेलेक्टिंग फ्रॉम दैट मार्केट हाउ मच इनकम वी विल गेट. हमको ज्यादा इनकम आना चाहिए और खर्चा हमारा कम होना चाहिए. देन ओनली वी कैन सर्वाइव इन दैट मार्केट. हमारा सस्टेनेबल कितना चलेगा या सस्टेन हम लोग कैसे कर सकते हैं. व्हेन आवर इनकम इज मोर एंड एक्सपेंसेस आर लेस, एट दैट टाइम वी कैन सस्टेन इन दैट मार्केट. तो सस्टेनेबल में क्या रहेगा, फॉर डेवलपिंग एनी मार्केट कॉस्ट इज ऑलवेज इनकर्ड. कॉस्ट खर्चा तो होगा, बट उसके साथ हमको ये भी देखना है कि हमारा इनकम कितना होगा. इफ द इनकम और वी कैन से इफ द रेवेन्यू इज मोर एंड द एक्सपेंसेस आर लेस, देन वी कैन से दैट वी आर ग्रोइंग. थर्ड वन होता है accessible. Accessible means the market should be accessible. That is, the marketer should be able to reach the market in order to sell his product. Accessible, the market should be accessible. जो मैन्युफैक्चरर रहेगा, जो मार्केटर रहेगा, he should be able to reach the market. वो मार्केट में जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मार्केट जो कस्टमर्स तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, कस्टमर्स तक पहुंचना उसको मुश्किल हो रहा है. एट दैट टाइम मार्केट टारगेट हमारा बराबर से सेलेक्ट नहीं हुआ है. द मार्केट शुड बी एक्सेसिबल फॉर द मार्केटर. द फोर्थ वन इज अबाउट द हेट्रोजेनस. हेट्रोजेनस मार्केट टारगेट हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हेट्रोजेनस रहेगा दैट इज द नीड, एक्सपेक्टेशन, डिजायर एक्सेट्रा ऑफ द टारगेट मार्केट मस्ट बी वैरिड. ओनली इफ दे आर वैरिड दे मे रेस्पॉन्ड फेवरेबली टू द डिफरेंट मार्केटिंग. अगर हेट्रोजेनस रहेगा, जहाँ पे सबका नीड, एक्सपेक्टेशंस, डिमांड सब डिफरेंट रहेगा, तो जब हम लोग टारगेट मार्केट बनाएंगे तो हमको एक फेवरेबल रिस्पॉन्स मिलेगा. दैट इज वी विल बी गेटिंग मोर कस्टमर्स. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. Market target means we are not able to satisfy the full market, so we will be selecting certain part. We will be calling it as a target market, and we will be trying to satisfy those customers. That is, for this, doing this, the market should be measurable. जो भी रहेगा target market should be measurable. Measurable means हमको अंदाजा होना चाहिए कि potential demand कितना होगा, जो कस्टमर्स है उनका इनकम कितना हो सकता है. It should be sustainable. Second one is it should be sustainable. Sustainable means the revenue should be more and the expenses should be less, so that we can sustain in the market, we can grow. Accessible, the market should be easily accessible to the marketer. जो मैन्युफैक्चरर रहेगा, जो मार्केटर रहेगा, उसको मार्केट इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए. Heterogeneous, when the market is heterogeneous, only then this market targeting can be possible. Next we'll be learning about the 5 patterns of target market selection. Try to understand, it's very easy. 5 patterns of target market selection. अलग अलग 5 पैटर्न्स क्या रहेगा, टारगेट मार्केट हम लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज अबाउट सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन. Single segment concentration means here the marketer selects only one segment and offer a single product. एक सिंगल सेगमेंट वो सेलेक्ट करेगा और वो सिंगल सेगमेंट को वो एक सिंगल प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चर करेगा. That is about single segment concentration. The marketer will be selecting a single segment and he will be offering only a single product. That is, the product will be one as well as the segment will be one. Here, the marketer is trying to concentrate on a very limited or we can say very selected group of people. वो ग्रुप को सेलेक्ट करके रखा है, उस हिसाब से ही इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर. अभी यहाँ पे उसने सिंगल सेगमेंट रहेगा और सिंगल प्रोडक्ट रहेगा. फॉर एग्जाम्पल ऐसे अलग अलग से रेस्टोरेंट्स हम लोग देखते हैं जहाँ पे सिर्फ पंजाबी खाना मिलेगा, तो पंजाबी में एक स्पेशल रहेगा जो वही चीज वहाँ पे अवेलेबल रहेगा. या साउथ इंडियन शॉप्स जहाँ पे हमको सिर्फ डोसा मिलेगा, डोसा में वैरायटीज मिल जाएगा बट हमको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ पे. दैट इज अबाउट द सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन. या अभी ऐसे जो दुकान रहेंगे जो अगरबत्ती बेचते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ वही चीज रहेगा और कोई चीज उनके पास नहीं रहेगा. दैट इज अबाउट सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन. ओनली वन सेगमेंट ऑफरिंग ओनली ए सिंगल प्रोडक्ट. इसमें एडवांटेजेस क्या रहेगा,
The firm can enjoy economies of scale. Economies of scale means यहाँ पे the manufacturer will take the advantage of mass production and distribution as the cost can be reduced. जब mass production होगा, उसका distribution भी अच्छे से हो रहा है, तो automatically उसका जो cost रहेगा will be reduced. That is, economies of scale can be enjoyed by the manufacturer. हम लोग उसका एडवांटेजेस में बोल रही हूँ. अभी एडवांटेजेस क्या है? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स कैन बी एंजॉयड बाय द मैन्युफैक्चरर और कैन बी एंजॉयड बाय द मार्केटर because there will be mass production and distribution cost could be reduced. उसके बाद एक specialized image आ जाएगा. The company or the marketer will be getting a specialized image for that particular segment. वो particular segment, or we can say for that particular product, the company will be having a specific image. The return on investment for the firm can be high. Returns क्या रहेगा? काफी ज्यादा रहेगा if the product is successful in the market. The returns will be high if the product is successful in the market, and it can also become the leader in the market. अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा लगा है, वो सक्सेसफुल होगा, कंपनी मार्केट में सबसे बड़ा कंपनी, एक लीडर कंपनी बन जाएगा. दैट इज अबाउट सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन, वन सेगमेंट विथ ओनली वन प्रोडक्ट. दैट इज टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑन ओनली सिंगल प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स. बट इसमें लिमिटेशंस क्या रहेगा, डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा? लिमिटेशंस ये है, दैट इज व्हेन the company is selecting only single product, उनको उस segment को satisfy करना है, survival will become difficult. जरूरी नहीं होगा हर कस्टमर को वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, तो उनको सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाएगा. जैसा लोगों का टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स विल चेंज, so he has to bring changes in the product, otherwise the company will be in loss. Then if suppose certain competitors came, अगर काफी तगड़ा कॉम्पिटिटर आ गया है मार्केट में, तो इसका जो कंपनी है सर्वाइव होना मुश्किल हो जाएगा. एडवांटेजेस में क्या है? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ही विल बी एंजॉइंग, स्पेशलाइज्ड इमेज आ जाएगा, द कंपनी कैन गेट हाई रिटर्न्स ऑन इस इन्वेस्टमेंट बिकॉज अच्छा प्रोडक्ट रहेगा, कस्टमर्स को अच्छा लग रहा है, वो कंपनी वो मार्केट का लीडर बन सकता है. इसका डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा? इफ द कंपनी इज नॉट गेटिंग फेवरेबल रेस्पॉन्स मीन्स द कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, देन द कंपनी विल नॉट सर्वाइव. एज द टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस आर चेंजिंग, द कस्टमर्स टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स आर चेंजिंग. इन द सेम वे the customer will not be satisfied. Customers का taste change हो रहा है, they will not be happy with the single product, तो इसको loss हो सकता है. And if a certain competitors comes, if there is no competitor, single segment market will enjoy a lot of profit. If the competitors come, then it will be difficult for the single segment concentration to survive in the market. तो ये हो गया हमारा first point, single segment concentration, one segment with only one product. Second one is about multiple segment specialization. Multiple segment specialization, जो single segment था उसका उल्टा होगा ये. Multiple segment में क्या होता है? The marketers select multiple segments. अलग अलग segments को select करता है and offer multiple products for them. What multiple segmentation is doing? That is, they are selecting multiple segments and offer multiple products for them. The marketer tries to cater to a wider audience with multiple products. The marketer tries to attract more audience with multiple products. All such segments are attractive and appropriate with firms' objective and resources. That is, अभी यहाँ पे marketer क्या कर रहा है? He is selecting different segments and offering multiple products to satisfy the customers. यहाँ पे वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है अलग अलग सेगमेंट्स के लिए. दैट इज काफी ज्यादा सेगमेंट्स रहेगा और उसके पास डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहेगा. उसका मेन काम क्या रहेगा? टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड ही कैन अर्न मोर प्रॉफिट. इसमें एडवांटेजेस क्या रहेगा? द कंपनी डज नॉट डिपेंड ऑन ओनली वन प्रोडक्ट फॉर सर्वाइवल. अभी मल्टीपल सेगमेंट है, दे आर हैविंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स आल्सो, सो दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ओनली वन प्रोडक्ट. वो लोग एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं उनको सक्सेस के लिए या सर्वाइवल के लिए. दैट इज
The company does not depend on one product for survival and growth. Second advantage क्या है? The company adapting these strategies can approach and satisfy more number of people. That is, the company जो multiple segment select कर रहे हैं, they can adapt this approach as well as satisfy more number of people. क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कस्टमर्स ज्यादा रहेगा और इन ज्यादा कस्टमर्स को लोग सेटिस्फाई कर पाएंगे. So the second point is the company adapting this strategy can approach and satisfy more number of people. The third one is about company can approach market which it has not served before. That is, ऐसे मार्केट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कंपनी जो उन्होंने पहले कोशिश नहीं किया होगा, पहले उनके पास वो मार्केट नहीं होगा, बट अभी दे आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई दोज कस्टमर्स आल्सो. दैट इज अबाउट कंपनी कैन अप्रोच मार्केट विच इट हैज नॉट सर्व बिफोर. जो पहले उन्होंने वो मार्केट सेलेक्ट नहीं किया था, अब मल्टीपल सेगमेंट में दे कैन गो फॉर दैट आल्सो. अभी कोरोना का टाइम पे अभी तुम लोग टीवी में एड देखते रहेंगे. पहले हम लोग देखते थे कि ये जो डेटॉल है, डेटॉल का लिक्विड मिलता था, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, बट अभी हम लोग देखते हैं, अगर टीवी में, अगर तुम लोगों ने देखा रहेगा एड टीवी या न्यूज़पेपर्स में, जहाँ पे अभी डेटॉल वालों ने, उनका ये भी आया है, कपड़े को डेटॉल में डुबा के निकालने का अलग लिक्विड, फ्लोर क्लीनिंग करने का अलग लिक्विड. दैट इज अबाउट ऐसा सेगमेंट जहाँ पे वो भी एक मल्टी सेगमेंट रहेगा, जहाँ पे नए कस्टमर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे थे पहले जो कपड़े में लोग अलग अलग लिक्विड्स लगाते थे क्योंकि जो इंसेक्ट्स रहेगा मारने के लिए या जो वर्म्स जो रहेगा उसको मारने के लिए, बट अभी उसका डेटॉल ने उसका अलग सा लिक्विड बनाया है. यू कैन सी दैट सर्टेन टाइम्स वी कैन सी द एड दैट वेजिटेबल्स धोने के लिए अलग सा लिक्विड आया है, मुझे उस कंपनी के नाम याद नहीं आ रहा है, बट रिसेंटली मैंने देखा था वेजिटेबल्स धोने के लिए अलग सा लिक्विड आया है, जो उसको हम लोग वेजिटेबल्स में डाल के उसके जो इंसेक्ट्स रहेंगे उसको मार सकते हैं करके. दैट इज अबाउट मल्टी सेगमेंट. जो पहले उन्होंने वो एरिया में जब ध्यान नहीं दिया था, बट अभी दे आर कमिंग, दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट न्यू मार्केट, नया मार्केट, नए कस्टमर्स को वो लोग टारगेट करने की कोशिश करते हैं. वो हो जाता है हमारा मल्टीपल सेगमेंट स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे हमारे पास सेगमेंट ज्यादा रहेगा, हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा, एंड वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स. एडवांटेजेस क्या रहेगा? द कंपनी विल नॉट डिपेंड ऑन सिंगल प्रोडक्ट, उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है. ये अप्रोच से क्या रहेगा? द कंपनी कैन सेटिस्फाई मोर कस्टमर्स, द कंपनी कैन गेट न्यू मार्केट, जो पहले उसके पास वो मार्केट नहीं था, अभी वो नई मार्केट की कोशिश करेगा. अब लिमिटेशंस क्या रहेगा? लिमिटेशंस, रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी गेट स्प्रेड टू मेनी प्रोडक्ट. जो लिमिटेशंस रहेगा वो जो रिसोर्सेस रहेगा वो स्प्रेड हो जाएगा टू मेनी प्रोडक्ट्स एंड सेगमेंट. जो रिसोर्स उसके पास अवेलेबल रहेगा वो उसको स्प्रेड करना पड़ेगा हर एक डिफरेंट सेगमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए. मार्केटर में नॉट गेट ए स्पेशलाइज्ड इमेज. यहाँ पे मार्केटर को एक स्पेशलाइज्ड इमेज नहीं मिलेगा, बल्कि सिंगल सेगमेंट में क्या था, उधर स्पेशलाइज्ड इमेज था, मल्टीपल में स्पेशलाइज्ड इमेज नहीं रहेगा क्योंकि उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है. यहाँ पे प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में वैरी, में इंक्रीज एज द मार्केटर में नॉट बी एबल टू गेट इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल बाइंग एंड सेलिंग. दैट इज, यहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट जो रहेगा काफी बढ़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मार्केटर जो है ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके पास ज्यादा सेगमेंट है, सो यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगा. इकोनॉमी, वहां पे सिंगल में क्या था, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल था. दैट इज, हम लोग बल्क में प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बल्क में हो रहा है, तो हमको उसका बेनिफिट मिलता है. बट मल्टीपल सेगमेंट में क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट से, अलग अलग सेगमेंट से, तो यहाँ पे हम लोग बल्क परचेस, सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए हम लोग बल्क परचेस नहीं कर सकते, अलग अलग प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है. तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी विल नॉट बी एंजॉइंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बिकॉज दे आर नॉट गोइंग फॉर बल्क प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे वो लोग पहले एंजॉय करते थे सिंगल में, बट मल्टीपल में वो लोग नहीं एंजॉय करेंगे बिकॉज दे आर नॉट गोइंग फॉर बल्क प्रोडक्शन और बल्क डिस्ट्रीब्यूशन. ये हो जाएगा हमारा मल्टीपल सेगमेंटेशन. द थर्ड वन इज अबाउट प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्या रहेगा? दैट इज,
The marketer introduces one product across multiple segments. Product specialization means यहाँ पे the segments will be more and the product will be same. One product and with multiple segments. यहाँ पे product एक रहेगा और segments are many. Company offers different models and varieties to meet the need of different segments. That is, product segmentation में क्या रहेगा हमारा, product will be one but the segmentations will be different. अब मार्केटर कोशिश करेगा कि वो हर एक सेगमेंट के कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाए. हर एक सेगमेंट मीन्स यहाँ पे लो इनकम, मिडिल इनकम, हायर इनकम, सबको वो सेटिस्फाई कर पाए, वो कोशिश करेगा. दैट इज अबाउट product specialization. Only one product and the segments or the targets will be more. The company will be trying to satisfy with one product all the consumers of different levels. For example, अभी जैसे बिस्लरी का बॉटल देखते हैं. बिस्लरी का बॉटल छोटा वाला है, 10 रुपीज वाला भी है, 20 रुपीज वाला है, 25 वाला भी है और 5 लीटर्स वाला भी है. दैट इज सिंगल प्रोडक्ट. स्पेशलाइजेशन उसका डिफरेंट है. जैसा मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा, अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं 1 लीटर का लूंगी. अगर मुझे बस अभी मैं घर ही जा रही हूँ बट मुझे बहुत प्यास लगी तो मैं छोटा वाला बॉटल परचेज करूंगी. दैट इज अबाउट स्पेशलाइजेशन. मतलब जैसा कस्टमर रहेगा उस कस्टमर को सेटिस्फाई करने के हिसाब से मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग शैम्पू का भी बॉटल लेते हैं, पैंटीन का शैम्पू लेना है, 2 लीटर का बॉटल अवेलेबल रहेगा. उससे छोटा, अगर मुझे अभी इतने पैसे नहीं, मुझे अभी का भी शैम्पू चाहिए तो 2 रुपीज पैकेट भी मार्केट में अवेलेबल है. दैट इज अबाउट प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. दैट इज जो जिस इनकम का भी लोग होने दो, अगर ज्यादा इनकम है, हाई इनकम है, उनके पास ज्यादा पैसे है तो वो लोग बड़े बॉटल परचेज करेंगे. जिसके पास इनकम कम रहेगा तो वो लोग छोटे छोटे जो बॉटल्स रहेंगे वो लोग वो परचेज करेंगे. दैट इज, ये प्रोडक्ट क्या करता है, दे आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई द ऑल द कस्टमर्स. वो सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है. दैट इज, प्रोडक्ट विल बी वन बट उसका सेगमेंट जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा. इसके लिए हम लोग हमेशा देखते हैं व्हेनेवर वी आर गोइंग टू परचेज एनीथिंग, उसका सबसे बड़ा बॉटल भी रहेगा, उसका अलग अलग साइज में बॉटल्स मार्केट में अवेलेबल है. whenever that type of products we are seeing, it is about product specialization. Companies are going to satisfy the whole market segment. ऐसे हम लोग हर चीज में देखते हैं. अभी जो भी डेटॉल भी लेने जाएंगे तो बड़ा बॉटल भी है, छोटा वाला भी अवेलेबल रहेगा. वॉट एवर थिंग वी आर, ऐसा नहीं होगा कि हमको हमेशा एक बड़ी चीजें लेना पड़ेगा. बट जैसा हमारा इनकम रहेगा, जैसा रहेगा, छोटा चाहिए तो छोटा ले लो, बड़ा चाहिए, बड़ा वाला चाहिए तो वैसा ले लो. That is about product specialization. The product will be one, but the segmentations will be more. इसमें हाई इनकम, लो इनकम, उसको ध्यान में रखे वो लोग का प्राइस और साइज जो रहेगा इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा. इसमें एडवांटेजेस क्या रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बिल्ड करता है. The major benefit is that the company can build a strong reputation in the specific product area. रेपुटेशन बन जाएगा, प्लस डोमिनेट करेगा मार्केट को. It can focus on improving the quality of the product and thereby retain the dominance in the market. उसके बाद क्या है, the company can have production and marketing economics. Production and marketing economics वही लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे ही किया जाएगा. अब डिस्ट्रीब्यूशन करने के टाइम भी हम ये नहीं बताएगा कि इसके पास जो स्मॉल है, जो कम स्मॉल इन साइज वाले भी हैं और बड़े वाले भी हैं, ऐसे कभी भी इन्फॉर्म नहीं करेगा. जब भी हम लोग टीवी में भी ऐड देखते हैं, फॉर एग्जांपल टीवी में तुम लोग कुछ बिस्किट्स का भी ऐड देख लो या आइसक्रीम्स का ऐड देख लो, जैसे हमारा इनकम रहेगा वैसा हम लोग वी कैन परचेज. फैमिली पैक भी मिलेगा, सिंगल पैक भी मिलेगा. दैट इज अबाउट द प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. तो वो हर एक कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है. इसमें लिमिटेशंस क्या रहेगा, suppose the product does not succeed in the market, the company may incur huge losses. कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा. और ऐसे कंपनीज जो सिंगल प्रोडक्ट करके मैक्सिमम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, दे मे फाइंड डिफिकल्ट टू एंटर इन डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज. दूसरे प्रोडक्ट में एंटर करना उनको मुश्किल हो जाएगा. अभी यहाँ पे
It is difficult to devise a product which can satisfy need of different categories of people. अब ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना जो हर एक कस्टमर को सेटिस्फाई करे वो भी काफी मुश्किल हो जाता है. So the limitations are, if the product does not succeed, the firm will suffer huge losses. Succeed नहीं होगा, the company will be making losses. उनको loss suffer करना पड़ेगा. The specialized image which the company have got would make extension difficult. वो जो specialized image मिला है उनको, उससे उनका extension, उनका अपना company को लोग extend कर नहीं सकते हैं. Third one is about, it is difficult to devise a product which can satisfy need of different categories of people. अलग अलग categories of people उनको satisfy करना मुश्किल हो जाएगा. The fourth one is about market specialization. Market specialization means this strategy consists of serving many needs of a particular segment. Many needs of a particular segment. Market specialization में क्या रहेगा? Segment will be single market, और but वहाँ पे satisfy करने के लिए they will be trying to sell multiple products. That is, the marketers sell multiple products to a selected segment. Try to understand the difference. Product specialization में क्या था? प्रोडक्ट एक था बट वहां पे मार्केट ज्यादा था. मार्केट स्पेशलाइजेशन में क्या है? मार्केट तो एक है बट हमारा प्रोडक्ट जो रहेगा मल्टीपल रहेगा. दैट इज द कंपनी इज गोइंग टू सेलेक्ट द मार्केट इन विच दे विल बी इंट्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स. मल्टीपल प्रोडक्ट्स मीन जहां पे लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे. द प्रोडक्ट्स आर मैनी बट द सेगमेंट इज वन. प्रोडक्ट सेगमेंटेशन में सेगमेंट प्रोडक्ट एक था, सेगमेंट ज्यादा था. प्रोडक्ट इज वन, सेगमेंट इज मोर. मार्केट सेगमेंटेशन में सेगमेंट एक है बट यहाँ पे द प्रोडक्ट्स आर मल्टीपल. यहाँ मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है? द सेगमेंट इज वन बट हमारा प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा है. दैट इज फॉर एग्जाम्पल एक सेगमेंट जहाँ पे एक ही कंपनी है बट अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं. जैसे पार्ले कंपनी हो गया, उनका डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बिस्किट्स मार्केट में अवेलेबल है. ट्राइंग टू अट्रैक्ट सिमिलर प्रोडक्ट. एक मार्केट, एक ही मार्केट है बट उसमें जितने भी रहेंगे कस्टमर्स सबको वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो अवेलेबल करता है. पार्ले का कंपनी हो गया. ऐसे अलग अलग कंपनी है जो मार्केट उनका एक रहेगा बट वो लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी सर्फ एक्सेल को ले लो. सर्फ एक्सेल आ गया, उसका लिक्विड आ गया, उसका अलग अलग चीजें जो मार्केट में अवेलेबल है. दैट इज अबाउट, उनका मार्केट तो एक है बट डिफरेंट वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर इंट्रोड्यूसिंग टू सेटिस्फाई द कस्टमर. मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड द मार्केट विल बी वन. दैट इज अबाउट मार्केट्स पे एक ही मार्केट रहेगा बट यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट रहेगा. वो हो जाएगा हमारा मार्केट स्पेशलाइजेशन. इसमें एडवांटेजेस क्या रहेगा? The firm can gain a strong reputation. एक strong reputation रहेगा. Extension become easy as the target segment approach is already using the product produced by the market. अभी यहाँ पे extension करना easy हो जाएगा because the customers are widely using the same product. Lead economics of distribution. Economics of distribution रहेगा. That is, bulk में production होगा, bulk में distribution होगा तो वहाँ पे उसको benefit मिलेगा. बट लिमिटेशन में क्या बोल रहा है? डिपेंडेंस ऑन ओनली वन सेगमेंट इज नॉट एडवाइजेबल. वो एक ही सेगमेंट में ध्यान दे रहा है एंड ही इज इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स. वो एडवाइजेबल नहीं होगा. अगर मार्केट का साइज रिड्यूस हो गया या परचेसिंग पावर रिड्यूस हो गया, द कंपनी विल बी फेसिंग मोर प्रॉब्लम्स. If one of the product does not work, it means it will become negative effect on the other brand. That is, अगर इसका एक प्रोडक्ट अच्छा नहीं चला या एक प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसके नेक्स्ट दूसरा जो प्रोडक्ट रहेगा उस कंपनी का सेम प्रोडक्ट जो कंपनी के नाम से चल रहा है उसको वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा. That is, if one of the product does not work, it may have negative effect on the other brand as the target customers are the same. Dependence on only one segment is not advisable. Reduced size of market, reduced purchasing capacity of the segment, or the entry of the competitors with
superior product range and adverse effect on the company's position. अगर कॉम्पिटिटर आ गया या उनका कस्टमर्स का परचेसिंग पावर कम हो गया है तो ऑटोमेटिकली हमको कंपनी को प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे. The last one is about the full market coverage. Full market coverage means here the firm tries to serve all customer group in all segment. सारे कस्टमर ग्रुप को सारे सेगमेंट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है. This is done by identifying the need of the customers across different segments and offering multiple products. The company attempts to serve all customer groups with all the products they might need. That is full market coverage जो रहेगा. नॉर्मल बिजनेस करना, हम लोग यहाँ पे मार्केट को सेगमेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई द होल कस्टमर्स. हम लोग सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे एडवांटेज क्या रहेगा? दैट इज न्यू प्रोडक्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, कैन सक्सेस इन द, इफ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर इट कैन सक्सेस, आराम से उसका सक्सेस हो जाएगा. They can easily sustain in the market because they are having multiple product and they are having multiple segments also they are having. इसका limitations क्या रहेगा? यहाँ पे specialization नहीं होगा. Limitations में क्या होगा? Specialization नहीं होगा and there will be an cascading effect. Cascading effect means ऐसा effect, अगर एक प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, एक प्रोडक्ट में एक नेगेटिविटी आ गया है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट उसी कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट में होगा. द सेम वे अगर एक प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, उसका ब्रांड नेम काफी बढ़ गया है, तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके दूसरे प्रोडक्ट में आ जाएगा विद द सेम ब्रांड. और इसमें हमको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इफ द स्मॉल कंपनीज आर देयर दे कांट इन्वेस्ट सो मच, तो इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर द स्मॉल कंपनीज. बट इफ द प्रोडक्ट डज नॉट वर्क, द कंपनी में इनका ह्यूज लॉसेस, उनको ज्यादा लॉसेस हो सकता है. Full market coverage means यहाँ पे multiple products will be there as well as the multiple segments will be there. They will be trying to satisfy the whole market. अलग अलग segments में अलग अलग products introduce करके they will be trying to satisfy the full market. I hope you all understood till here. यहाँ पे हमारा first module finish हो जाता है. अब इसमें जो रहेगा important questions which are most important is that marketing जो है, फर्स्ट वाला मार्केटिंग फीचर्स इंपॉर्टेंस पढ़ो. MIS इज इम्पोर्टेंट, उसके कंपोनेंट्स, उसके एसेंशियल्स इंपॉर्टेंट है. मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, फीचर्स इंपॉर्टेंट है. डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग रिसर्च एंड MIS का. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें से तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं कंज्यूमर्स बिहेवियर का. If it's very easy, just try to understand the behavior of consumers. वो लोग कैसे बिहेव करते हैं उसको ध्यान में रखना है. मार्केट सेगमेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. और जिधर इधर चार्ट रहेगा प्लीज वो चार्ट बना के पढ़ने की कोशिश करना. मार्केट सेगमेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. CRM का जो टेक्निक्स है इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो मैंने पढ़ा इट्स वेरी इजी, तुम लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हो. सिंगल मार्केट, मल्टीपल सेगमेंट, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट डिफरेंट रहेगा, मार्केट हमारा एक ही रहेगा. मार्केट स्पेशलाइजेशन, मार्केट एक रहेगा बट प्रोडक्ट हमारे पास डिफरेंट रहेगा. फुल मार्केट कवरेज, मल्टीपल सेगमेंट्स एंड मल्टीपल प्रोडक्ट. बस ये ध्यान में रखना है. जितने मैंने क्वेश्चंस बोले हैं अच्छे से प्रिपेयर करना, नोट्स बनाना, अच्छे से प्रिपेयर करना. इफ यू हैव एनी डाउट्स इसी में कमेंट करना कि क्या तुमको डाउट है, क्या है. I will make it sure that वो डाउट्स तुम्हारा क्लियर हो जाए. ठीक है.